Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. In this video, we are going to discuss about SAYS and DESH. Um, Basically, we are going to talk about SAYS new reforms that is gonna be called as DESH. The full form of DESH is the Development of Enterprise and Service Hubs. As we all know, Government of India have brought up latest SAYS reforms, right? And this is the fourth makeover. So we are going to discuss about it and we'll try to go in deep with this topic. I hope this video will be helpful to you guys, and if you guys find this video helpful, then do like, share and subscribe Commerce Tutorpedia. Now, how SAYS are set for a fourth makeover? We are going to discuss it in this video. First, let us understand what are special economic zones, or which are shortly known as SAYS. Alright. Now, India was one of the first in Asia to recognize the effectiveness of the Export Processing Zones (EPS) model in promoting exports. Right? Now, with Asia's first EPZ set up in Kandla in 1965, राइट अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि इंडिया जो था वो फर्स्ट था एशिया के अंदर जिसने इस चीज को पहचाना कि क्या इफेक्टिवनेस हो सकती है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की, इसीलिए उन्होंने फर्स्ट, इंडिया ने ही फर्स्ट ईपीजेड दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोटिंग जोन्स या प्रोसेसिंग जोन सेटअप किया था कांडला के अंदर इन 1965. Now, with a view to overcome the shortcoming experienced on account of the multiplicity of controls and clearance, अब कहने का मतलब क्या है, क्योंकि with a view to overcome, किसको ओवरकम करने के लिए, जो शॉर्टकमिंग्स हो रही थी या फिर एक्सपीरियंस की जा रही थी ऑन द अकाउंट ऑफ कंट्रोल्स. शॉर्टकमिंग्स किस वे में, कंट्रोल्स और क्लियरेंसेस के, absence of world-class infrastructure and an unstable fiscal regime, and with a view to attract larger foreign investment in India, the Special Economic Zones (SEZs) policy was announced in April 2000. Now this was announced, okay? हमने किस समय अडॉप्ट किया इसको, किस समय से हमने इसको शुरू किया, उसकी डेट आपको थोड़ी सी अलग नजर आएगी. ठीक है, तो क्या क्या शॉर्टकमिंग थी, सेल्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसके रीजन क्या थे, क्योंकि कंट्रोल्स थे बहुत ज्यादा, ठीक है, और बहुत ज्यादा क्लियरेंसेस की जरूरत थी, मतलब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी और अनस्टेबल फिजिकल रेजिम चल रहा था, और टू अट्रैक्ट लार्जर फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेज को इंट्रोड्यूस किया गया था या पॉलिसी को अनाउंस किया गया था. नाउ दिस पॉलिसी इंटेंडेड टू मेक सेज एन इंजन for economic growth supported by quality infrastructure complemented by an attractive fiscal package both at center and the state level with the minimum possible regulations. ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग. द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट, अब एक्ट कब लागू हुआ था, 2005 के अंदर, वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन मई 2005 विच वॉज रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट on the 23rd June 2005. Now these are very important dates that we should remember. After extensive consultations, the SAYS Act 2005 supported by SAYS rule came into effect. अब came into effect मतलब effect में कब आया था ये, 10th February 2006. So now there are three dates that we need to remember कि SAYS policy was introduced in April 2000. Then what about Act? So SAYS Act was received or passed on 23rd June 2005 and it came into effect की अगर हम बात करें तो वो था 10th February 2006. All right. Now let us see what were the objectives of introduction of SAYS. The first one was the generation of additional economic activity, promotion of export of goods and services, promotion of investment from
domestic and foreign sources, creation of employment opportunities and development of infrastructure facilities. अब मुझे नहीं लगता these points are very common that we all understand. Now let us move. Now the SAYS Act 2005 envisages key role for the state government. Now this is very important. जो SAYS था उसमें बहुत अहम रोल स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया था इन एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रिएशन ऑफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर. सारी की सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई थी कि आप अपने स्टेट के अंदर एक्सपोर्ट प्रमोशन किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से क्रिएशन करते हैं रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का. A single window SAYS approval mechanism has been provided through a 19-member interministerial SAYS board of approval. अब कहने का मतलब क्या है कि SAYS जो है उसके अंदर सिंगल विंडो मैकेनिज्म होगा जिसके अंदर बोर्ड ऑफ अप्रूवल्स रखे गए हैं. कुछ लोग हैं जिसमें 19 मेंबर्स हैं. ठीक है, जिसमें कितने मेंबर्स बताए हमने? 19 मेंबर्स हैं. अब ये क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ अप्रूवल कोई भी सेज बनाने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट उनको बोलती है कि इसको सेज बनाना चाहिए, रेकमेंड करती है, वो इसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं और उसके बाद उसको सेट करते हैं. अगर हम देखें कि चेयरमैन कौन होता है इस बोर्ड का, अगर हम चेयरमैन की बात करें तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इज द चेयरमैन ऑफ SAYS. ठीक है, अब आगे आ जाते हैं. नाउ प्रॉब्लम्स विद इंडिया SAYS की अब हमें किसी भी तरीके से जो मेक ओवर की हम बात कर रहे हैं वो क्यों चाहिए होते हैं, रिफॉर्म्स हमें क्यों चाहिए होते हैं, जब हमें हमारे पिछले जो टॉपिक था या फिर जो भी हमारे पास सिस्टम था उसके अंदर हमें फ्लॉज नजर आ रहे, कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही. तो क्या क्या थे वो, हम उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो and SAYS is a walled area housing one or more business units. अब SAYS एक्चुअल में होता क्या है? एक वॉल्ड एरिया होता है जिसके अंदर आप वन और मोर बिजनेस यूनिट्स खोल सकते हैं. द डेवलपर्स एंड ऑपरेटिंग यूनिट्स गेट टैक्स एंड ड्यूटी कंसेशन. जो यहाँ पे अपने बिल्डिंग्स को या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को सेट करते हैं उनको क्या मिलता है? टैक्स एंड ड्यूटी कंसेशंस मिलते हैं, नॉट अवेलेबल टू फर्म्स इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और जो कि उन्हें दूसरी जगह नहीं मिलते हैं. बट इंडियन सेज आर मच स्मॉलर इन साइज. अब यहाँ दिक्कत क्या हुई? जो इंडियन की सेज है, मतलब ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, इसमें स्मॉलर साइज की एंड परफॉर्मेंस कंपेयर टू शेंजेन्स. ठीक है, अब शेंजेन्स क्या होते हैं? शेंजेन्स एक तरीके से ये एरिया है जो कि 49,000 हेक्टेयर, मतलब एक जगह में 49,000 हेक्टेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो द मिनिमम स्पेस नीडेड फॉर अ सेज इन इंडिया इज लेस देन 50 हेक्टेयर्स. यहाँ पे जो क्या क्राइटेरिया है कि आपको अगर सेज बनानी है तो वहाँ पे क्राइटेरिया है 50 हेक्टेयर से कम का. तो ऑब्वियस सी बात है, जो यूनिट्स वहाँ पे बन रही है उनके पास कम जगह है, कम ऑपरेटिंग करने की जगह है. सही है. स्मॉल साइज प्रिवेंट सेज फ्रॉम ऑफरिंग हाई क्वालिटी कॉमन फैसिलिटीज एंड प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम्स. एंड नाउ व्हाट इज प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम्स? हमने अभी देखा था कि हमारे लास्ट बजट, जो राजस्थान का बजट है, जिसने भी पढ़ा था, उसमें प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम के बारे में बात की गई थी कि इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली या फिर राजस्थान में स्पेसिफिकली ऐसे एरियाज डेवलप किए जाएंगे जो ऑलरेडी डेवलप्ड होंगे, जहाँ पे केवल फैक्ट्रीज को या यूनिट्स को या डेवलपर्स को केवल आना है और अपना काम शुरू करना है. बस प्लग एंड प्ले मतलब केवल आपको प्लग करो और शुरू कर दो अपने काम. As a result, SAYS attracted units more for the tax concession than for any other competitive considerations. That's why many large export-oriented units were converted into SAYS when tax exemptions ended, investment dried up. जब हम यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि इसी कारण से, मतलब क्योंकि वो ड्यूटी में एजेम्पशंस और टैक्स के अंदर एजेम्पशंस मिल रहे थे, तो बहुत सारे लार्ज एक्सपोर्टेड ओरिएंटेड यूनिट्स को छोटा कर दिया गया सेज के अंदर. और जब तक उनको टैक्स एजेम्पशन मिल रहा था तब तक काम चला. जैसे ही वो एंड हुआ तो इन्वेस्टमेंट भी लोगों ने डालनी बंद कर दी. टुडे लेस देन हाफ द लैंड अप्रूव्ड फॉर सेज पर्पस इज यूज्ड. जो भी लैंड अप्रूवल होते हैं ना सेज, उसमें से बहुत कम यूज होते हैं. समझ में आया? क्योंकि बहुत कम स्पेस है तो भाई कैसे करोगे उसमें काम, वो फायदा ही नहीं है. नाउ अब देश जो एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, हाउ डज देश प्लान
to change this. अब देश मतलब वो देश इसको मत समझ लेना. It stands for the development of enterprise and service hubs. ये full form जो है बहुत important है. Now India is having 268 says, है ना, और ये जो है इसका फोर्थ रिफॉर्म है. अब इसके अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स आ रही हैं जो चेंज करेगा सेज की शॉर्ट्स कमिंग को. तो बेसिकली देयर आर 3 की चेंजेस. रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शन दैट एक्सपोर्ट शुड बी मोर देन इंपोर्ट ओवर 5 years. अब ये क्या बताया जा रहा है कि इस देश में जो ये रिफॉर्म आया है इसके अंदर एक पॉइंट है कि 5 सालों के लिए रिमूव कर दिए जाएंगे रेस्ट्रिक्शंस को कि भाई एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए इंपोर्ट से. ठीक है, आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं. दे कैन ऑल्सो डू इनवॉइसिंग, मतलब जो यहाँ पे डेवलपर्स हैं जो यहाँ पे मतलब अपना सेटअप करने आएंगे ऑपरेटिंग यूनिट्स, दे कैन ऑल्सो डू इनवॉइसिंग इन रूपी. वो अपना रूपी के अंदर इनवॉइस बना सकते हैं टू फैसिलिटेट डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस. गिविंग मोर कंसेशंस टू सेल. अब इसके अंदर क्या करा जाएगा, और कंसेशंस लेके आएंगे डोमेस्टिक मार्केट के लिए. दिस विल एनकरेज द इंपोर्ट एंड प्रमोट मेकिंग इन सेल्स. डी नोटिफाइंग सेलेक्ट फ्लोज, मतलब डी नोटिफाई किया जाएगा जो कि आईटी सेज हैं. सो द ओनर कैन इफेक्टिवली यूज द स्पेस. मैनी आईटी एंड आईटीज सेज आर एम्प्टी बिल्डिंग्स. वो एम्प्टी बिल्डिंग्स है ना, तो इससे अच्छा है कि उनको दो जो नॉर्मल वाले हैं क्योंकि वो यूज. नाउ विल दीज चेंजेस बी इनफ? According to Times of India, Ajay Srivastav, he said that these are good first step, but if Government of India wants says to replicate the Shenzhen story, it has to do more. Now, what was the Shenzhen story? Now, Shenzhen's create large size says, right? And Shenzhen's are basically large size, and it helped uh, to become a self-contained economy, attracting investors, professionals, and large anchor firms. What they do is they set up large-scale units in electronic computers, textiles, and chemicals. Tax benefits were just a small part, not the primary reason for Shenzhen's success. So, if Government of India wants Desh to replicate Shenzhen's story, they should add 6 new features according to Ajay Srivastav. Now the first one is to get a big player. Sectorial hub for textile, electronics or pharma must invite a large global anchor firms to kickstart operations. Now Ajay Srivastav जी ने क्या कहा है कि आपको big players like जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक या फार्मा कंपनीज को इनवाइट करना चाहिए इन हब्स के अंदर, ताकि वो क्या करते हैं, their use of Indian ancillaries and component supplier firms will benefit the entire sector. ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सुजुकी का, जिन्होंने 1980 के अंदर यही काम किया था. ठीक है, अगला है हमारे पास बी क्विक. बी क्विक का मतलब क्या है कि इन सेज को इस तरीके से किसी कॉरिडोर से जोड़ा जाए कि जैसे ही प्रोडक्शन हो रहा है उनकी शिपमेंट भी बहुत जल्दी हो रही है. ऐसे नहीं है कि कोई स्टॉक आइडल रखा हुआ है. एम बिगर, right? Now they should focus not just on sales but also on industrial parks for various sectors. ब्रेक बैरियर्स की बहुत सारे वॉल्स और जितने भी फिजिकल कंट्रोल्स है ना मस्ट बी रिमूव्ड. दे आर लीकेज प्रोन एंड यूज अ GSTN लाइक सिस्टम टू मॉनिटर मूवमेंट. नो IT please. As I have told early, ITs are not using the lands that are allocated by SAYS or under SAYS. So उनको हटा ही देना चाहिए ना, इसकी जगह और नए फॉर्म्स को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और बिग प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. एंड बी फेयर ऑन लैंड. ठीक है, अब बी फेयर ऑन लैंड मतलब क्या होता है कि ऐसे लैंड्स विच आर नॉट गेटिंग यूज्ड अंडर सेज शुड बी रिटर्न बैक टू देयर ओनर्स. ठीक है, सो दैट इज इट गाइस. आई थिंक these topics will be very helpful to you guys. ठीक है, और अगर इसमें आपको लगता है कि कोई भी आपको
इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिखता है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको अपनी अगली वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी। ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आपको लगता है कि हमें उसके बारे में ब्रीफ जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट में डालिएगा, मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस।